Hi everyone, I am Ashwini. Now we start question number 3, exercise 5.1. Come to the question number 3. Identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. So my dear children, they given some pairs of angles and they say which one is complementary and which pair is the supplementary. Now we remember complementary angle is equal to 90 degree and supplementary angle is equal to 180 degree. So come to the question number first. Given angles 65 and 115. So now we add these two angles 65 plus 115 equal to 180. 180 is equal to supplementary angles. Therefore, the given pair is supplementary angles. We write here supplementary angles. And come to the question number 2. जो given angles 63 and 27. Add these two angles 63 plus 27. 3 plus 7 10 और 1 carry 6 और 1 carry 7 और 8 to 9 means 90. 90 degree is equal to yes complementary angle. So these given pair is complementary angle. It's okay. So come to the question number 3. Given angles 112 and 68. So add these two angles 112 plus 68 is equal to 180. This is also supplementary because 180 is equal to supplementary angle. And next one is fourth, question number 4. Given angles 130 and 50 degree. So add these two angles 130 plus 50 is equal to 180. So this given pair is equal to supplementary angle, though this given pair is supplementary. And another one, question number 5. Given pair 45 degree and again 45 degree. Add these two angles 45 plus 45 equal to 90 degree. 90 degree is equal to complementary angle. So this given pair is complementary angles. We write here this one is the complementary angles. Are you understand, students? Now come to the question number 4. Question number 4. Find the angle which is equal to its complements. So friends, इसमें हमें एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है और इसके इक्वल कौन सी है, एक एंगल की इक्वल कौन सी होती है ये पूछा है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री में एक एंगल की इक्वल दूसरी एंगल होना चाहिए तो दोनों बराबर ही होगी. सो हम इसलिए क्या किया, 90 को दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45. एक कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल है 45 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होगी 45 डिग्री की. सो 45 प्लस 45 क्या होती है 90. सो जो एंगल 45 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होना चाहिए तो वो 45 होगी. एक 45 एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 ही होगी. सो इसका आंसर होगा 45. सो क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री. सो इसमें क्या करना है, पहले में हमने किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इक्वल पता किया और सप्लीमेंट्री एंगल में अभी हमें इक्वल पता करना है. सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होती है 180 डिग्री को और टोटल एंगल होती है 180 डिग्री. उसमें एक एंगल वो दिए हैं और उन्हीं का इक्वल दूसरी एंगल होना चाहिए तो हम मीन्स 180 में 2 एंगल्स होगी. तो 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 0. सो 90. इसमें भी हमें क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगी 90. तो दोनों इक्वल है 90 इक्वल टू 90. सो एक एंगल 90 डिग्री की है उसका सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री की होती है. सो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं. Now come to the question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles.
If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplement? So friends, इसमें हमें ये एंगल्स दिए हैं, जो ये डायग्राम में देखिए, यहाँ ये एंगल 1 एंड एंगल 2। हमें ये पूछा है, दोनों ये सप्लीमेंट्री हैं तो 180 डिग्री है दोनों मिला के। सो एंगल 1 डिक्रीज होगी तो एंगल 2 में क्या होती है करके पूछा है, बट क्या रहेगी, दोनों सप्लीमेंट्री ही रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगी। सो एंगल 1 हम डिक्रीज करेंगे, ये एंगल ये इतना है तो इसको हम कम करते जाएंगे, यहाँ लाएंगे तो एंगल 2 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 2 विल इंक्रीजेस with the same measure as the decrease in angle 1। एंगल 2 को हम जितना इंक्रीज करेंगे उतना एंगल 1 डिक्रीज होती जाएगी, इसको इंक्रीज करेंगे एंगल 2 को तो एंगल 1 डिक्रीज होगी, एंगल 1 को इंक्रीज करेंगे तो एंगल 2 डिक्रीज होगी, बट still these two angles are remain supplement. Okay, come to the question number 7. Can two angle by supplementary if both of them are? So ये क्वेश्चन है, कौन सी दोनों एंगल में होगी तब वो सप्लीमेंट्री रहेगी, कौन सी में, एक्यूट एंगल दोनों रहेगा तब सप्लीमेंट्री रहेगा, या दोनों अपटस एंगल रहेगा तब सप्लीमेंट्री रहेगा, या दोनों राइट एंगल पे रहेंगे तब सप्लीमेंट्री होगा करके हमें ये पूछा गया है। सो ये तीनों हमें यहाँ पूछा गया है। तो एक्यूट एंगल होती है 180 डिग्री से 90 डिग्री से कम ही रहने वाला, तो हम ये 90 डिग्री से कम है तो हम ये दो एंगल लिया, 90 डिग्री से मान लीजिए 89 हम दोनों लिए हैं तो भी वो 180 नहीं होगी, 178 होगी, तो वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, इस केस में भी ये नहीं होगी। और एप्टस एंगल अबो 90 डिग्री का ऊपर रहेगा, हम 91 ही लेंगे, 91 भी लेंगे तो ये होगी 182। सो इस कंसेप्ट में भी क्या हो रही है, सप्लीमेंट्री नहीं हो रही है, और ये भी हमें रॉन्ग है, इसमें भी नहीं होगा तो हम यहाँ नो लिख रहे हैं, और एक्यूट एंगल में भी नहीं होगा इसलिए हम यहाँ नो लिख दिए। और राइट एंगल इक्वल होती है 90 डिग्री को, 90 + 90 = 180। दो एंगल है सप्लीमेंट्री में, वो दोनों राइट एंगल रहेगा तब वो सप्लीमेंट्री रहेगा, ये दोनों राइट एंगल रहेगा तब भी वो सप्लीमेंट्री रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें सही है तो हम यहाँ पे यस लिख देते हैं। ओके, इस तरह हम इसको देखेंगे। एक्यूट एंगल में भी दोनों एक्यूट एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगी, और दोनों एप्टस एंगल है तो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगी, और दोनों राइट एंगल है तब वो सप्लीमेंट्री बनेगी, और एक एक्यूट और एक एप्टस एंगल है तो बनेगा। ओके, एक एक्यूट है अब बिलो 90 है, एक अपटस है अबो 90 है, तो इक्वल 180 हो सकती है। अदरवाइज दोनों एक्यूट है और दोनों अपटस है तो तब भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनती है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, is it complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? So friends, हमें क्या पूछा है, एक एंगल है ग्रेटर देन 45 की और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता करनी है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा या इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा। ऐसा मैं इससे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे, दोनों एक्यूट या ऑप्टस होता है तो होता है कि नहीं होता है सप्लीमेंट्री। उसी तरह यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ ऑलरेडी कितना दिया है, ग्रेटर देन 45 है, अबोव 45 का ऊपर दिया है तो हमें 90 होने के लिए कितना चाहिए, अबोव 45 और एक एंगल चाहिए कि इक्वल 45 का एंगल चाहिए कि बिलो 45 का एंगल चाहिए। सो देखते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री में ये अबोव 45 है, 45 से ज़्यादा है। ठीक है, कोई एंगल इधर दिया है तो वो 45 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगी, 45 से कम एंगल ही बचेगी। सो बिलो 45 बचेगी, तो अबो कॉम्प्लीमेंट्री
नहीं होगी बिलो कॉम्प्लीमेंट्री में, एक अबो 45 है तो दूसरा बिलो 45 होना चाहिए। सो मीन्स लेस देन 45 एंगल हमें चाहिए। एक ग्रेटर देन 45 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है लेस देन 45। ओके, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए लेस देन 45 एंगल हमें मिल जाएगी। आर यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।